شمالی کوریا کے خلاف جاپان نے بھی دکھائے سخت تیور، شمالی کوریا کی میزائلوں کو ہوا میں ہی تباہ کرنے کے احکامات کیے جاری۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے توہین مذہب قانون میں ترمیم کرنے سے کیا انکار، کہا کہ ملک میں پہلے سے موجود قانون ہے کافی۔ فلسطینی صدر محمود عباس اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے درمیان امن مذاکرات بحال کرنے پر ہوئی بات چیت، تفصیلات بتانے سے انکار۔ اور پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلوں کا مرحلہ شروع، 17 اپریل تک اپیلوں پر ہوگا فیصلہ۔ آداب، میں ہوں عادل خان، پیش خدمت ہے ہمارا خاص بلیٹن خبر خلیج۔ اپنی اس خاص پیشکش کے ساتھ ہم روبرو ہوتے ہیں خلیجی ممالک سے جڑی اہم خبروں کے ساتھ۔ کوریا جزیرے میں بڑھتی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے جاپان نے بھی اپنی فوج کو شمالی کوریا کے میزائل کو ہوا میں ہی تباہ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ دراصل جاپان کو خدشہ ہے کہ شمالی کوریا کسی بھی وقت اس کے شہروں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ شمالی کوریا نے امریکی فوجی اڈوں اور جنوبی کوریا پر فوجی کارروائی کی بات کہتے ہوئے جوہری اسلحوں تک کا استعمال کرنے کی دھمکی دی ہے۔ کوریا جزیرے میں بڑھتی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے جاپان نے بھی اپنی فوج کو شمالی کوریا کے میزائل کو ہوا میں ہی تباہ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ دراصل جاپان کو خدشہ ہے کہ شمالی کوریا کسی بھی وقت اس کے شہروں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ وہیں شمالی کوریا نے امریکی فوجی اڈوں اور جنوبی کوریا پر فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے اور ساتھ ہی جوہری اسلحوں تک استعمال کرنے کی بات بھی کہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان کو خدشہ ہے کہ شمالی کوریا اوکیناوا کے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ دوسری جانب ماہرین دفاع کا ماننا ہے کہ اگر اوکیناوا پر حملہ ہوا تو بڑی تعداد میں شہری ہلاک ہو سکتے ہیں۔ وہیں جاپانی وزیر دفاع نے جاپان کی جانب آنے والے کسی بھی میزائل کو مار گرانے کے لیے اینٹی میزائل ٹیکنالوجی سے لیس جہاز تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ جاپانی ذرائع کے مطابق جاپان بھلے ہی شمالی کوریا کے براہ راست نشانے پر نہیں ہے، لیکن کم جونگ اون اور شمالی کوریا کی روایت کو دیکھتے ہوئے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف ماہرین دفاع کا ماننا ہے کہ شمالی کوریا اور امریکہ میں جس طرح سے تنازع چل رہا ہے، یقیناً یہ خوف زدہ کرنے والی بات ہے۔ ایسے وقت میں جب ہر ایک ملک کے پاس کم سے کم 100 ایٹم بم ہیں، کوریا پہلے ہی جوہری حملے کی دھمکی دے چکا ہے۔ وہیں اس نے 16 اپریل تک تمام سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ اس کشمکش کے سبب اگر امریکہ یا کوریا نے حملہ کیا تو یقیناً یہ حملہ کسی بھی خوفناک شکل اختیار کر سکتا ہے اور تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایک طرف جہاں چین نے شام، ایران اور شمالی کوریا کے سر پر ہاتھ رکھ رکھا ہے، وہیں روس اور ہندوستان کی صورتحال ابھی واضح نہیں ہے۔ وہیں جاپان پہلے ہی امریکہ کے خیمے میں ہے۔ ایسے میں حالات کیا بنیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن دوسری جانب اقوام متحدہ بھی لگاتار شمالی کوریا کی جانب سے ہونے والی بیان بازیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری بان کی مون کے مطابق شمالی کوریا حکومت کو اشتعال انگیز بیان بازیوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے۔ واضح ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے ماضی میں کیے گئے جوہری تجربے کے بعد اقوام متحدہ نے سخت پابندی عائد کر دی تھی، جس کے بعد شمالی کوریا نے شدت کا رخ اختیار کر لیا تھا۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ حسینہ نے توہین مذہب قانون میں ترمیم سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ملک میں پہلے سے موجود قانون کافی ہیں اور اسے بدلنے کا ان کی حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش میں مذہبی جماعتیں توہین مذہب کے قانون کو بدلنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ وہیں شیخ حسینہ نے کہا کہ یہ ملک ایک سیکولر جمہوری ملک ہے، اس لیے ہر مذہب کے ماننے والوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنی عبادت انجام دیں، لیکن کسی کے مذہبی احساسات کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے توہین مذہب کے موجودہ قانون کو حالات سے نپٹنے کے لیے کافی بتایا ہے اور کہا کہ اس میں سرودست کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش ایک سیکولر ملک ہے جہاں ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے طور پر رہنے کا اختیار ہے، لیکن کسی کے مذہبی احساسات کو ٹھیس پہنچانا صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے توہین مذہب کے حوالے سے نئے قانون کے مطالبات پر کہا کہ ملک میں پہلے سے ہی موجود قانون کافی ہے، جس میں سرودست ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش میں مذہبی جماعتیں توہین مذہب کے قانون کو بدلنے کا مطالبہ کر رہی ہیں، جس کے پس منظر میں بعض بلاگرز کی جانب سے مبینہ طور پر کی جانے والی توہین مذہب ہے۔
शेख हसीना ने कहा कि मुल्क में पहले ही मुनासिब कानून मौजूद है, जिनकी रोह से किसी मजहब की तौहीन करने वाले को सजा दी जा सकती है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो मजहबी जमातों के मुतालबों को मुस्तरद कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि सवाल कबूल और रद्द का नहीं है, सरोदस्त उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे मजहबी जमातों के मुतालबात में से ऐसा कोई मुतालबा हुआ जो बेहतर हुआ तो उस पर जरूर गौर किया जाएगा, और ऐसे मुतालबात जो मुल्क और मुआशरे के मुफाद में नहीं है उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। वहीं बिलागर्ज की गिरफ्तारी के बाबत उन्होंने कहा कि इस मुल्क में एक कानून मौजूद है जो मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वालों पर गिरफ्त करता है। इसी के साथ उन्होंने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया कि बांग्लादेश अपनी सेक्युलर बुनियाद से हट रहा है। वहीं दूसरी जानिब मजहबी जमातों का कहना है कि उन्हें वजीर आजम के बयान से मायूसी हुई है, क्योंकि उन्होंने मुल्क में तौहीन मजहब के नए कानून के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह है कि बांग्लादेश में एक तरफ इस्लाम पसंद तंजीमों का मुतालबा है कि तौहीन मजहब के मुर्तकिब अफराद को सजाए मौत समेत सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। दूसरी जानिब एतदलाल पसंद तबके इल्जाम आयद कर रहे हैं कि हुकूमत इस्लाम पसंदों के दबाव के सामने झुक रही है। इसी दौरान बांग्लादेश में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। मुजाहिरीन तौहीन इस्लाम के मुर्तकिब बिलागर्ज की फांसी का मुतालबा कर रहे हैं। इससे कबल गुज़िश्ता दिनों दारुल हुकूमत ढाका में लाखों अफराद ने तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम नामी मजहब गिरोह की कॉल पर एहतजाजी रैली निकाली थी और इस्लामी मुक़द्दसात के खिलाफ गुस्ताखी के मुर्तकिब बिलागर्ज को फांसी दिए जाने का मुतालबा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने इजराइल फ़लस्तीन अमन मुज़ाकरात बहाल करने पर बातचीत की है, लेकिन ज़राए के मुताबिक किसी भी फरीक ने तफसीलात बताने से इनकार कर दिया है। कैरी ने तकरीबन 1.5 घंटे तक महमूद अब्बास से बात की। एक सीनियर अमरीकी अफसर ने बातचीत को मुसाबत करार दिया, लेकिन कोई तफसीलात नहीं बताई। बहरहाल अफसर ने कहा कि दोनों लीडरों ने अमन की राह तलाश करने के लिए मिलकर काम करने पर रजामंदी जाहिर की है। साथ ही अफसर ने बताया कि दोनों लीडरों ने इस इक़्तिसादी उमूर पर भी बातचीत की और इस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की ताकि बातचीत के लिए साजगार माहौल किस तरह पैदा किया जाए। उससे कबल इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुज़ाकरात 2010 में यहूदी बस्ती की तामीर के सबब नाकाम हो गए थे। बहरहाल दूसरी तरफ महमूद अब्बास के एक मुअद्दिन ने बताया कि इस बातचीत की तफसील आम करने से मना किया गया है। पाकिस्तान में होने वाले आइंदा आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के मुस्तरद होने या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों का मरहला शुरू हो गया है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा इलेक्शन शेड्यूल के तहत कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल इतवार के रोज़ खत्म हो गई थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की आम नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी मौसूल हुई थी। इनमें कौमी असम्बली के लिए 7,364 और चारों सूबाई असम्बली के लिए 16,730 कागजात नामजदगी जमा कराई गई हैं। कागजात नामजदगी को रद्द या कबूल करने के बारे में इलेक्शन कमीशन के अफसरान के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की ख़त्म तारीख 10 अप्रैल मुकर्रर की गई है। इंतखाबी ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक उन अपीलों पर फैसला करेगा, जबकि उम्मीदवारों को 18 अप्रैल तक अपने कागजात नामजदगी वापस लेने की इजाज़त होगी। अफगानिस्तान के मशरकी इलाके में तालिबान कमांडरों को निशाना बनाने के लिए नाटो की एक मुहिम के दौरान 11 बच्चे हलाक हो गए। इसके अलावा 6 इंतहा पसंद भी हलाक हुए हैं, जिनमें तालिबान के 2 चोटी के कमांडर भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इस हवाई हमले में शहरियों के घर भी जद में आ गए। अफगानिस्तान के मशरकी इलाके में तालिबान कमांडरों को निशाना बनाने के लिए चलाई गई शुमाली ओकियानूसी मुहादती तंजीम यानी नाटो की एक मुहिम के दौरान एक हवाई हमले में 11 बच्चों और एक औरत की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं वजारत दाखिला ने जारी करदा एक बयान में कहा है कि पाकिस्तानी सरहद पर किनारे सूबे के शिगाल जिले के एक गाँव में चलाई गई मुहिम के दौरान 6 इंतहा पसंद भी मारे गए हैं, जिनमें से तालिबान के चोटी के 2 कमांडर भी शामिल हैं। बयान में अगरचे शहरियों की मौत का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन सूबाई गवर्नर के तर्जुमान वासिफ अल्लाह वासवाई ने बताया कि हवाई हमले की जद में शहरियों के घर भी आ गए हैं। मिस्टर वासवाई ने बताया कि इस हवाई हमले में 11 बच्चों और एक औरत की मौत हुई है। वहीं शिगाल जिले के सरबराह मोहम्मद जाहिद शाफाई ने बताया कि हवाई हमले की जद में आकर घरों के मुनहदिम होने से एक औरत और कई बच्चों की मौत हुई है। साथ ही इससे कबल एक कार बम धमाके में 5 अमेरिकी मारे गए थे, जिनमें 3 अमेरिकी फौजी और एक नौजवान सिफारतकार खातून भी शामिल है।
जबकि मशरिक में हुए एक अलहदा हमले में एक अमरीकी आम शहरी हलाक हुआ है। दूसरी जानिब अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने बताया है कि जब धमाका हुआ, एक सिफारतकार जिसका नाम नहीं बताया गया और दीगर अमरीकी जाबिल सूबे में गाड़ियों के काफिले में शामिल थे। फौजी और सिफारतकार की धमाकों में मौत हो गई है। साथ ही वजारत दिफा का एक मुलाजिम और अफगान शहरी भी मारे गए हैं। ताहम ये नहीं बताया गया है कि कुल कितनी अमवात हुई है। वहीं खित्ते में मकामी और बैनुल अक़वामी अफसरान ने कबल अज़ी कहा था कि धमाकों में 6 हलाकतें हुई हैं, जिनमें 3 अमेरिकी फौजी, 2 अमेरिकी आम शहरी और एक अफगान डॉक्टर भी शामिल है। वहीं ज़राए के मुताबिक सूबाई गवर्नर मोहम्मद अशरफ नाज़दी भी काफिले में थे, मगर वो सही सलामत बच गए हैं। कैरी ने कहा कि हमारे अमेरिकी अफसरान और उनके अफगान साथी सूबाई राजधानी कलात में एक स्कूल के तलबा को किताब अतिया करने जा रहे थे कि इस नफरत अंगेज हमले में फंस गए। उन्होंने कहा कि काबुल के दौरे के दौरान सिफारतकार से वो पहले ही मुलाकात कर चुके थे और उसकी मौत के बाद उसके वालिदैन से भी बात की है। वहीं 4 दीगर अमेरिकी सिफारतकार जख्मी हुए हैं और उनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। धमाके के वक्त काफिला एक अस्पताल और नाटो के ठिकाने के नजदीक था, जिनमें 5 अफगान जख्मी भी हुए हैं, जिनमें एक तालिब इल्म और 2 पोर्टर शामिल हैं। वाज़ेह है कि यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी फौजी सरबराह जनरल मार्टिन डी में मुख्तसर दौरे पर अफगानिस्तान आए हुए हैं। अफगानिस्तान के मशरिक में हुए हमले में अमेरिकी हुकूमत के साथ काम करने वाला एक अमेरिकी आम शहरी बागियों के हमले के दौरान मारा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी ने दारुल हुकूमत काहिरा में फिरका वाराना बुनियाद पर झड़पों की मजम्मत करते हुए इस मामले की तहकीकात का हुक्म जारी किया है। मुसलमानों और ईसाइयों के बीच इन झड़पों में 5 अफराद हलाक जबकि 80 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी ने दारुल हुकूमत काहिरा में किप्ती ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल के बाहर फिरका वाराना बुनियाद पर झड़पों की मजम्मत की है और उनकी तहकीकात का हुक्म नाफिज कर दिया है। ज़राए के मुताबिक सदर मुर्सी ने किप्ती ईसाइयों के पोप तवाज़रोस दोम से टेलीफोन पर बात की और कैथेड्रल पर हमले पर इजहार अफसोस किया। पोप ने भी इस हमले की मजम्मत की और तमाम मिस्रियों पर जोर दिया है कि वो पुरअमन रहें। दारुल हुकूमत काहिरा के नवाही इलाके अल-खुसूस में जुमा को फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात में 4 किप्ती ईसाई मारे गए थे और वहाँ मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान झड़पें बाज़ मसीही लड़कों की जानिब से एक इस्लामी दीनी इदारे की दीवार पर तहरीरें लिखने के रद्द अमल में शुरू हुई थी। ईसाइयों और मुसलमानों में खूरेज तसादुम में 4 किप्ती ईसाई और 1 मुसलमान मारा गया था। मरने वाले चारों ईसाइयों की आखिरी रसूमात काहिरा में किप्ती सेंट मार्क कैथेड्रल में अदा की गई। इनमें शिरकत के बाद सैकड़ों ईसाई काहिरा की सड़कों पर निकल आए और उन्होंने कैथेड्रल चर्च के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत जमात इख्वानुल मुस्लिमून के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस दौरान उनकी मुसलमानों के साथ झड़पें शुरू हो गईं। पुलिस एहलकारों ने मुताहरिब गिरोहों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले फेंके। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ईसाइयों की इश्तियाल अंगेज नारेबाजी की वजह से उनके इलाके के मुसलमान मुश्तैल हो गए थे। ईसाइयों के एहतजाजी मुजाहरे में शरीक नौजवानों ने पुलिस की जानिब पथराव भी किया। उन्होंने 6 कारों के शीशे तोड़ दिए और 2 को आग लगा दी। इस पर मुसलमानों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई और उन्होंने ईसाई मुजाहिरीन पर पथराव शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक किप्ती चर्च के हेडक्वार्टर्स में दुआई तकरीब के बाद कई घंटे तक मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान झड़पें होती रही और उनमें 1 मुसलमान हलाक और 84 जख्मी हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। ईरान के एटमी मामले पर होने वाले मुज़ाकरात के एक और दौर की नाकामी के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात लंबे वक्त तक जारी नहीं रह सकते हैं। ज़राए के मुताबिक उन्होंने मशरिक़ वुस्ता, यूरोप और एशिया के 10 रोज़ा दौरे के आगाज़ पर तुर्की पहुंचने के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए ये बात कही। वाज़ेह रहे कि कज़ाकिस्तान के अलमाती शहर में होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए थे। इस मौके पर जॉन कैरी ने कहा कि इजराइल और तुर्की बगैर किसी ताख़ीर के ताल्लुकात बहाल करें। याद रहे कि माजी में इजरायली फ़ौज ने तुर्की के एक जहाज़ को निशाना बनाया था जो फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान लेकर जा रहा था। इसी बात को लेकर दोनों ममालिक के दरमियान हालात मज़ीद कशीदा हो गए थे। ज़राए के मुताबिक जॉन कैरी का यह दौरा ईरान के पड़ोसी ममालिक को ईरान के खिलाफ आमद करने के तनाज़ुर से देखा जा रहा है। सऊदी अरब के मैदान अरफात में आग से महफूज रहने वाले 60,000 मुस्तकिल खेमों का इंतजाम किया जाएगा। इस सिलसिले में सुप्रीम हज कमेटी के सरबराह और मामलकत के वजीर दाखिला शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ ने म्युनिसिपल कमेटी को मंसूबे की निगरानी करने की हिदायत जारी कर दी है, जो मौजूदा प्लान के नुमाया खद-खाल और उस पर उठने वाले अखराजात का तमखीना लगाएगी।
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد سعودی عرب کے میدان عرفات میں آگ سے محفوظ رہنے والے 60,000 مستقل خیموں کا انتظام کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سپریم حج کمیٹی کے سربراہ اور مملکت کے وزیر داخلہ شہزادہ محمد بن نائف نے میونسپل کمیٹی کو منصوبے کی نگرانی کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے، جو موجودہ پلان کے نمایاں خط و خال اور اس پر اٹھنے والے اخراجات کا تمخینہ لگائے گا۔ ذرائع کے مطابق بلدیہ میں ترقیاتی منصوبے جات کے سیکرٹری ڈاکٹر حبیب بن مصطفیٰ زین العابدین کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وزیر موصول نے میدان عرفات میں مستقل خیموں کے بارے میں 10 روز قبل تجویز پیش کی تھی۔ لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك جس کے موصول ہوتے ہی اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ منصوبے کی تکمیل سے حاجیوں کو عرفات میں زیادہ سے زیادہ جگہ میسر آئے گی۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد عرفات کے میدان میں کاٹن کے خیموں کا استعمال ترک کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ آتش زدگی کا باعث بن جاتے ہیں۔ وہیں مستقل خیمہ بستی میں اللہ کے مہمانوں کو مناسب معیار کی خدمت کی فراہمی بھی یقینی کی گئی ہے۔ ذرائع نے اس منصوبے پر اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ 2 ارب سعودی ریال لگایا ہے۔ زین العابدین کے بقول اس منصوبے کو 3 برس میں مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا اور ہر مرحلے کی تکمیل پر تیار ہونے والے خیموں کو حجاج استعمال کر سکیں گے۔ منصوبے کی تکمیل سے حاجیوں کو عرفات میں زیادہ سے زیادہ جگہ میسر آئے گی۔ واضح ہے کہ ماضی میں حج کے دوران آگ لگنے کے ہولناک واقعات پیش آ چکے ہیں اور مستقبل میں ناگوار حادثوں سے حفاظت کے مد نظر اس پروجیکٹ پر عمل کیا جا رہا ہے۔ دراصل میدان عرفات میں لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام موجود رہتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا خبریں خلیج میں وقت ہے کہ چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد خبریں اور بھی ہیں۔ بھوپندر سنگھ ہڈا نے کسانوں کا خیال کیا، ریٹ بڑھا دیے گیہوں کے، ایسا غضب کمال کیا، ہریانہ کے سی ایم نے ہر کسان خوشحال کیا۔ خوشیوں کے اب گھر گھر بجتے ڈھول دیکھو، خوشیوں کے اب گھر گھر بجتے ڈھول دیکھو، خوب دیے فصلوں کے اونچے مول دیکھو، خوب دیے فصلوں کے اونچے مول دیکھو۔ اپنے کاریہ میں مکھیہ منتری بھوپیندر سنگھ ہڈا کے پریاس سے گیہوں کے مولیہ میں 720 روپے پرتی کوئنٹل کی در سے وردھی ہوئی ہے، جس سے ہریانہ کا کسان خوشحال ہوا ہے۔ اس کے وپریت پورورتی سرکار کے 6 برسوں کے کاریہ کے دوران یہ وردھی کیول 80 روپے پرتی کوئنٹل کی ہی ہوئی تھی۔ اسی پرکار سے دھان، چنا، گنا، کپاس، پاپولر اور دالوں کے بھاؤ میں بھی پریاپت بڑھوتری کی گئی ہے، جس سے پردیش میں خوشی اور خوشحالی آئی ہے۔ ایسا گھر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، سنبھال کے پوچھا مارا ابھی۔ آئیے وہ بھائی صاحب، یہ دیکھیے ہال، یہ دیکھیے چلڈرنز روم، دیکھیے کتنا بڑا ہے، آپ کے بچے کھیلتے کھیلتے تھک جائیں گے۔ ہو گیا، مزے لے لیے، آئیے۔ اور یہ ہے بیڈ روم، اس کی کھڑکی سے تارے دکھتے ہیں، تارے۔ آپ کو کیا لگا پراپرٹی ڈیلر ہوں؟ ہاں، ارے آپ کو اپنا گھر دکھا رہا تھا۔ پرلز انفراسٹرکچر، ہم جانتے ہیں کہ گھر ارمان، امیدوں اور سپنوں کا بنا ہوتا ہے، تبھی تو ہم گھر بناتے ہیں، زندگیاں بناتے ہیں۔ اکشے باتھ روم کب دھوگے؟ آج سنڈے ہے نا۔ ہمارا ہریانہ امرتم شاردانمن امرتم
लहर ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसा हाँ होगा शिक्षा का शहर उच्च शिक्षा मिलेगी यहाँ होंगे रोजगार के भी अवसर नालंदा तक्षशिला की गौरवमयी परंपरा में हरियाणा की ऐतिहासिक अनुपम धरा में खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा छू रहा बुलंदी हरियाणा हरियाणा मेरी शान हरियाणा मेरी आन हरियाणा मेरा मान बढ़ रहे हैं ये कदम हरियाणा है नंबर 1 बढ़ रहे हैं ये कदम हरियाणा है नंबर 1 नए लक्ष्य नए कीर्तिमान हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण वक्फे के बाद खैर मकदम में आपका बढ़ते हैं आगे। इंडियन प्रेस काउंसिल के सरबराह मार्कंडे काजू ने कहा है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव से उनमें नाइंसाफी का जज्बा बढ़ता जा रहा है। साथ ही उन्होंने मीडिया की मजम्मत करते हुए दावा किया कि वो गैर जिम्मेदाराना सहाफत के जरिए मुसलमानों के बारे में गलत तहशीर से में मसरूफ है। काजू ने कहा कि जब भी कोई धमाका या इस तरह की कोई वारदात होती है तो 1 घंटे के अंदर ही टेलीविजन चैनलों पर इंडियन मुजाहिदीन या हरकतुल जिहाद इस्लामी के जरिए भेजे गए ईमेल या एसएमएस दिखाए जाने लगते हैं जिसमें हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी शरारती शख्स एक ईमेल या एसएमएस भेज सकता है, लेकिन जब उसे टेलीविजन पर दिखाते हैं और अखबार में शाये करते हैं तो वाज़ेह तौर पर मीडिया के जरिए पैगाम दिया जाता है कि सभी मुसलमान दहशतगर्द हैं, जिससे पूरे मुस्लिम समाज की छवि खराब होने लगती है। जबकि मुसलमानों में बहुत से फिरके हैं और सब फिरके शिद्दत पसंद नहीं होते। वहीं सारी मीडिया तहकीकात के बगैर कुछ न्यूज़ चैनलों की खबरों को ही शाये करने लगती है। खबरें खलीज में फिलहाल बस इतना ही। छोड़े जाते हैं आपको नाते पाक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं होती ज़मन मैदान नहीं होता ज़मीं मैली नहीं होती ज़मन मैदान नहीं होता ज़मीं मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुना लोगों मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुना लोगों ये जिस मन में समा जाए ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों
چمن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، سنبھال کے پوچھا مارا ابھی، آئیے۔ وہ بھائی صاحب یہ دیکھیے ہال، یہ دیکھیے چلڈرنز روم، دیکھیے کتنا بڑا ہے۔